Okay, welcome back, everyone. आप लोग सबका स्वागत है एक और बार। Let's continue from where we stopped before the break. ब्रेक लेने से पहले जहां पर हम छोड़े थे वहीं से शुरुआत करते So, हैं। we're talking about the redemption that we have in Christ. हम जो बात कर रहे हैं यीशु मसीह में जो छुटकारा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। Amen? Amen? Now, it is so important for us to know that we are redeemed. हमें बहुत जरूरी है जानना कि हम यीशु मसीह में छुड़ाए हुए लोग हैं। Because the Bible says that the devil is like a thief, he comes to steal, kill, and destroy. परमेश्वर का वचन कहता है शैतान जो है वो नाश करने के लिए चोर के समान आता है। Right? He comes to take what does not belong to him. वो इसलिए आता है जो उसके पास नहीं है वो चुराने के लिए आता है। Comes to steal. वो चुराने के लिए आता है। So he attacks us. वो हम पर घात करता है। But we have to say, I'm redeemed. लेकिन हमें ये कहना है कि मैं छुड़ाया हुआ हूँ। Look at this verse here, and under the application. Number 1, Psalm 107, verse 2. भजन संगीता 107 का 2। Let the redeemed of the Lord say so, whom he has redeemed from the hand of the enemy. 107 यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम लेकर छुड़ा लिया है। Let the redeemed of the Lord say so. जो छुड़ाए हुए हैं लोग हैं वो ऐसा कहें। So you and I must say, I am redeemed. हम लोग जो है उद्धार पाप प्राप्त किए लोग हैं, हम छुड़ाए हुए लोग हैं। You don't let the enemy come and trouble you and harass you. दुष्ट जो है वो हमारे खिलाफ में आकर हमें परेशान ना करने पाए। We have to say, we are the redeemed of the Lord. हमें हमेशा बोलना है कि हम छुड़ाए हुए लोग हैं। Amen. Amen. Now let's look at the next verse, Revelation 12, verse 11. देखिए प्रकाशित वाक्य 12 का 11। And they overcame him, that's the devil, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यह तक कि मृत्यु भी सह ली। So notice this verse, it's telling us how we overcome the devil. ये देखें इस वचन में कि किस प्रकार से हम शैतान के ऊपर हम विजय प्राप्त किए। By the blood of the Lamb. परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा। And by the word of their testimony. और उनके मुख से निकली हुई गवाही के द्वारा। So we have to testify. हमें इसलिए गवाही देना जरूरी है। To what the blood of the Lamb has done for us. क्या हमारे लिए हमारे यीशु मसीह के लहू ने किया है। So when you testify what the blood of Jesus has done for you, जब हम गवाही देते हैं कि यीशु मसीह के लहू ने हमारे लिए क्या किया, you overcome the devil. हम वो शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। Amen. Amen. So we have to say what the blood of Jesus has done for us. हमें कहना जरूरी है कि यीशु मसीह के लहू ने हमारे लिए क्या किया। That's why I tell you to raise your right hand up and say. इसीलिए मैं आप लोगों को दाहिना हाथ ऊपर उठाकर मैं बोलने को कहता हूँ। So let's say this together. आइए हम एक साथ कहेंगे, the blood of Jesus Christ यीशु मसीह का लहू has redeemed me. मुझे छुड़ाया है। I'm redeemed from the powers of darkness by the blood of Jesus. Okay, try that again. I'm redeemed from the powers of darkness by the blood of Jesus. अंधकार के शक्ति से परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से छुड़ाया गया हूं। Amen. Amen. Let the redeemed of the Lord say so. परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। So if you feel the devil is attacking, अगर आपको लगता है कि शैतान जो आपके खिलाफ में आता है, what must you do? क्या करना है? Say what the blood of Jesus has done for you. बोले यीशु मसीह के लहू ने क्या किया है। Amen. Amen. Don't sit down quietly. Oh, devil is attacking me. Devil is attacking. ऐसा ना बैठे कि हे प्रभु शैतान जो है मेरे ऊपर घाव लगा रहा है, घात लगा रहा है। No.
नो। Let the redeemed of the Lord say so. और परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए हुए ऐसा कहें। And they overcome the enemy by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. उन लोगों ने शैतान के ऊपर जो है विजय प्राप्त किया, किस प्रकार से? यीशु मसीह के लहू के द्वारा और उनके मुंह से निकलती हुई गवाही के द्वारा। So you say, devil, I want you to know, Jesus Christ, the blood of Jesus has set me free. और हम कहें कि शैतान, मेरे मुंह से शाह ही निकलता है, शैतान आता नहीं। एक ने बताया शैतान ये शैतान है, शाही आता है, माफ कीजिए। जो हम ये बोलना है कि शैतान, तुम्हें समझना जरूरी है कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए हुए हैं। Amen? आमीन। You must say what the blood of Jesus has done for you. हमें बोलना जरूरी है कि यीशु मसीह के लहू ने हमारे लिए क्या किया है। That's how we overcome. इस प्रकार से हम विजयी होते हैं। Let's go to lesson number. Any questions? Any questions? कोई सवाल है जो आपको समझ में, किस विषय में समझ में Before नहीं we start lesson number 8. 8वें अध्याय को देखने से पहले अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कृपया करके पूछ लें। Any questions? कोई सवाल? Yes, please. Use the mic. Okay. Yes, go ahead. My question is this: if God redeemed us and paid the all payments of us, what is the meaning of Judgment Day? To whom God prepared for that day? Okay. So the question is, if God has redeemed us, then why is there a judgment day? सवाल ये है कि अगर यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है, न्याय का दिवस क्यों है? So we will look at that in detail in a coming course, but I will explain now. आने वाले जो पाठ्यक्रम है उसमें हम देखेंगे जरूर, लेकिन भी सारांश एक निचोड़ रूप से आपको मैं We समझाना have a चाहता हूं। course on the end times. हमारे पास जो एक पाठ्य है वो अंतिम दिनों के बारे में है। We will look into the end times in detail. हम जो है व्यक्त रूप से अंतिम दिनों के बारे में देखेंगे जरूर। But let's explain this. First, Hebrews chapter 9, verse 27. इब्रानियों 9 का 29। When a person dies, जब एक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है, there's an immediate judgment. एक तुरंत एक न्याय होता है। The Bible says, Hebrews 9:27, it is appointed unto a man once to die, and after that judgment. पर इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ एक बार में एक व्यक्ति को मृत्यु है, उसके बाद उसका न्याय होता है। So when a person dies, जब एक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है, his spirit and soul, if he or she is a believer, will go to be with Jesus. कहा जाता है वचन में, अगर एक व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है, वो अगर विश्वासी है तो उसकी आत्मा जो है यीशु के पास जाता है। He's not a believer, अगर वो विश्वासी नहीं है, he goes to hell. वो नरक में जाता है। So that's an immediate judgment. वो है एक तुरंत न्याय। Right? So Jesus has paid the redemption price. यीशु ने जो है न्याय होना जो था, जो छुटकारा मिलना था, उसका दाम तो चुका दिया। For those of us who believe in him, और वो लोग जो लोग हैं जिस पर यीशु पर विश्वास करने वाले लोग, when we die, हम जब मरेंगे, मृत्यु को प्राप्त करेंगे, we go to heaven. हम लोग यीशु के पास जाएंगे स्वर्ग में। Right? The Bible talks about 2 more judgments. परमेश्वर का वचन जो है 2 और न्याय पालन के बारे में कहा जाता है। There is what the Bible refers to as the believer's judgment. उसको वचन कहता है कि विश्वासियों के जीवन में जो मृत्यु के बाद आने वाला न्याय। So you read about this in 1 Corinthians chapter 3, verse 11 to 15. पहला कोरिन्थियों 11वां अध्याय, Chapter 3, verse 11. तीसरा अध्याय 11 से लेकर 15 तक। And you also read about this in 2 Corinthians chapter 5, दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय verse 8 to 10. 8 से लेकर 10 तक। So this is the judgment of the believer. ये जो है विश्वासी लोगों का न्याय। So the believer is judged in heaven, स्वर्ग में उनका न्याय होगा, not for salvation, but for their rewards. उद्धार के लिए नहीं, लेकिन उनको जो अच्छे
कार्य किए हैं, जो कार्य किए उसका एक उपहार मिलना है उसके लिए। So that's the believer's judgment, वो जो है विश्वासी को मिलने वाला एक न्याय। right? So Paul says our works will be tried by fire. पौलुस कहता है कि हमारा काम जो है आग के द्वारा जांचा जाएगा। If it is burnt up, destroyed, we won't have a reward, but we will be saved. वो न्याय होकर अगर आग ने उसको भस्म कर दिया तो उसमें से जो है उपहार नहीं मिलेगा, लेकिन हमें एक अच्छा जीवन मिलेगा। Right? And also in 2 Corinthians 5 it says, we will all stand before the judgment seat of Christ to give an account of the deeds done in our body. और कोरिन्थियों 5 में भी कहा गया है कि हम एक दिन परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे और सारे कर्मों के अनुसार हमारा न्याय पालन किया जाएगा। So that's the judgment for believers. वो जो है ये जो न्याय है वो विश्वासियों के लिए। Then the Bible talks about, this is the final one, the great white throne judgment. और ये जो दूसरा है वो है जो स्वर्ग सिंहासन है उसके सामने खड़े होके न्याय पालन। So that's Revelation chapter 20, वो जो है प्रकाशित वाक्य 20 verses 13 to 15. 13 से लेके 15 तक। Revelation chapter 20, प्रकाशित वाक्य 20 13 to 15. 13 से 15। So that is after the millennial reign of Jesus, after those 1000 years reign of Jesus. वो परमेश्वर यीशु मसीह के 1000 साल के वास के बाद, In that great white throne judgment, और उस महान्याय के दिन every person who ever lived will stand before the throne of God. और हर एक मनुष्य जो इस धरती पर जीवन व्यतीत किया है वो उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा। Jesus also described it in Matthew chapter 25. मत्ती रचित सुसमाचार 25 में भी यीशु मसीह कहता है, There will be the sheep and the goats. वहां पर मेमना और बकरा, That's the great white throne judgment. और वो है जो महासिंहासन के सामने जो न्याय पालन होगा। And the Bible says the books will be opened. परमेश्वर का वचन कहता है किताबें खोली जाएगी। Revelation 20 verse 15 says, whoever name was not in the Lamb's book of life will be cast into a lake of fire. और जिस लोगों का नाम जो न्याय की किताब मेमने की किताब में उनका नाम लिखा नहीं गया है, पाया गया हो, उन सबको नरक में झोंक दिया So जाएगा। that's the final great white throne judgment. और वो होगा अंतिम न्याय। Right? So Christ has redeemed us. यीशु ने तो छुड़ाया है, If we believe in him, और हम उस पर विश्वास करें, as soon as we die, हम शीघ्र मरने के शीघ्र we go to heaven. हम यीशु के पास जाएंगे स्वर्ग में। We will have the believer's judgment. हमें विश्वासियों का न्याय होगा। That's for your rewards. आपके जीवन में अच्छे उपहार मिलने के लिए। And in the great white throne judgment, you're already on God's side. So there's nothing to worry about. और अंतिम न्याय दिन जो आएगा उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो परमेश्वर के साथ ही हैं। Amen? So that's why John wrote 1 John 4:17. We are not afraid of the day of judgment. इसीलिए यूहन्ना कहता है कि हम उस अंतिम न्याय के दिन से भयभीत नहीं हैं। 1 John 4:17. पहला यूहन्ना 4:17। Okay? This is small answer. We'll see full answer in the course. ये एक छोटे रीति से है, आगे जो पाठ्य आएगा उसमें हम और विस्तार रूप से देखेंगे। Okay? Let's see. I think there's a question on the chat. Where is the blood now? How do we access it? Or is it by faith? We use this blood to cleanse, deliver people from demons, use it over people for healing. एक चैट में एक सवाल आया है कि अभी जो है यीशु का लहू कहाँ है और उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या विश्वास के द्वारा छुटकारा प्राप्त करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए और शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। So when we talk about the blood, हम जब यीशु के लहू के बारे में जब बोलते हैं, we're not talking about a physical thing. हम जो है एक शारीरिक रीति से नहीं बोल रहे, We're talking about a spiritual reality. हम जो है एक आत्मिक तल में की बात कर रहे हैं। So it's like the righteousness of God. वो है परमेश्वर का धार्मिकता। The Bible gives us the picture that we have
robes of righteousness or robes of white. और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धार्मिकता का सफेद चोला हमारे पास है, कपड़ा है। It's not natural. It's not talking about us wearing white gowns. उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक सफेद कपड़ा पहन के खड़े हुए हैं, But righteousness is a spiritual reality. लेकिन धार्मिकता जो है एक आत्मिक सच्चाई है। Same thing, the blood of Jesus. उसी प्रकार यीशु का लहू, He's not talking about some blood that is poured on you, some drops falling. इसका मतलब नहीं है कि वो जो लहू जो आपके ऊपर कुछ बूंदे डाल दिया गया हो, He's talking about spiritual reality. लेकिन एक आत्मिक सच्चाई के बारे में कहा गया है। He's referring to the benefits of what took place on the cross. यो किस रीति से बोलता है, जो सलीब पर जो अच्छाइयां हुआ है उसके विषय में बोला गया। Leviticus chapter 17, verse 17, it says, the life of the flesh is in the blood. लेवी पुस्तक में लिखा गया है 17 Leviticus 17, verse 17. 17 के 17 में लिखा गया है। So so the blood is representing the life that Jesus gave. लहू जो है एक जीवन के बारे में बताता है। The life of Jesus. When we say blood of Jesus, we're talking about the life of Jesus. यीशु मसीह का लहू जब हम बोलते हैं, यीशु मसीह के जीवन के बारे में बोला जाता है। So it's in the power of that life that our sins are forgiven, or we minister healing, we minister deliverance to people. और इस लहू के जीवन में जो शक्ति है, सामर्थ है, उसके बारे में कहा गया है। हम जो छुटकारा के विषय में, चंगाई के विषय में, दुष्टों के ऊपर विजय प्राप्त करने के विषय में। So this is spiritual reality which we access by faith. ये एक आत्मिक क्या बोलते, गुप्त चीज है जो हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्राप्त करते हैं। We access by faith. और वो हम विश्वास के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। Amen? आमीन। You understood? क्या आप समझ रहे हैं? Any more questions? और कोई सवाल? Yes, sister. Mike. Your question. As you said that we are redeemed by the blood of Jesus, and sometimes yet we fall into the trap of Satan. So how should we save ourselves from the Satan's trap? सवाल ये है कि आपने बताया कि यीशु के लहू में हम छुड़ाए हुए लोग हैं, लेकिन कुछ कुछ समय पर हम वो गलत चीजों में फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, तो किस प्रकार से उसमें से हम बाहर निकल के आ सकते हैं? Okay. Quick answer. 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9. पहला पत्रोस 5 का 8 और 9। पहला पत्रोस 1 Peter chapter 5, verse 8 or 9. पहला पत्रोस 5 का 8 और 9। It says, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, he walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour, whom resist steadfast in the faith. उसमें लिखा हुआ है आप 1 Peter 5, 8 and 9. उसमें लिखा हुआ है कि सचेत रहो। So 1 Peter 5, 8 and 9. सबको लिखा 1 Peter 5, 8 and 9. वो लिख रहा है इसलिए मैं पहला पत्रोस 5 का 8 और 9। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, किसको फाड़ खाएं। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसी दुख सह रहे हैं। So what is he saying? First, we have to be sober, be vigilant. हमें सचेत रहना है पहले। So be alert. सचेत रहें। Then
उसके बाद we have to resist the devil, being firm in our faith. विश्वास में दृढ़ खड़े होकर शैतान का जो है विरोध करना है। Right? So we have to be alert. हमें सचेत रहना है। So don't live your Christian life sleeping. हमारा हमारा मसीही जीवन जो है सोते हुए ना जिए। No. You can't live like that. Be alert. हम वैसा जी नहीं सकते, हम हमेशा सचेत रहना है, Because the devil is busy doing his work. क्योंकि शैतान जो है वो हमेशा अपने काम करने में निपुण रहता है। So if he is coming in some way, trying to tempt us, attack us, we have to be alert. अगर वो किसी भी तरीके से हमें परीक्षा लेने या हमारे को गिराने की मेल आ रहा है तो हमें सचेत रहना है And we have to resist, being Or- firm in faith. और विश्वास में दृढ़ होकर उसका विरोध करना। Right? So God has given us all the weapons we need. हमारे पास यीशु मसीह ने सारे जो युद्ध के लिए है सारे औजार दिए हुए हैं। Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. इफिसियों 6 का 10 से लेकर 18। Ephesians chapter 6, verses 10 to 18. इफिसियों 6 10 से 18। Paul tells us what armor we must wear. पौलुस कहता है कि कौन कौन सा वस्त्र पहनना है शैतान के विरोध में खड़े होने के लिए। So put your helmet of salvation, सिर का टोपा पहन लें, breastplate of righteousness, छाती का कवच, belt of truth, कमर कस लें, shoes, gospel, सुसमाचार का जो जूता, shield of faith, विश्वास का कवच, and the sword of the Spirit, which is the word of God. वचन का जो तलवार है, आत्मा का तलवार जो वचन है, उसको भी धारण कर लें। And Paul says, if you do this, you will be able to quench all the fiery darts of the wicked. अगर पौलुस कहता है ये सब अगर आप धारण कर लो, ये सब अगर आप पहन लोगे तो जो भी दुष्ट ताकतें आपके विरोध में लेकर आता है एक तीर बाण के समान, उस सब का विरोध कर सकते हो। Amen. आमीन। So that's how we are supposed to live. इस प्रकार से है हम करना। Amen. So Amen. as believers, be alert, विश्वासी लोग जो हम हैं वो सचेत रहें। know your salvation. आपके उद्धार के बारे में ज्ञान होना चाहिए। So when it says put on the helmet, कहाँ से मिलेगा ये helmet? जब ये टोपा पहनने के लिए बोलते तो ये कहाँ से मिलेगा? No, when he says put on helmet means you must know your salvation. और जब टोपा पहनने के लिए बोलते हैं तो हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि ये जो उद्धार है कहाँ से मिलता है। Breastplate of righteousness. जो छाती का कवच है धार्मिकता का, So like wearing bulletproof vest. जो बुलेट प्रूफ, उसका हिंदी नहीं मालूम, बुलेट प्रूफ वेस्ट जो छाती का कवच है, But that is righteousness. वो है धार्मिकता। How do you put it on? उसको कैसे पहन सकते हैं? In your heart, you know you are the righteousness of God. अपने हृदय में ये एक विश्वास है कि मैं परमेश्वर का सच्चाई हूं, धार्मिकता हूं। Amen. आमीन। Belt is important. Holds up our pant. Very important. Holds up everything. बेल्ट पहनना जरूरी है, कमर को कसना जरूरी है, क्योंकि हमारा कमर के कपड़ों को वो संभालता है। So the belt is truth. जो बेल्ट है वो सच्चाई है, That is the word of God. वो है परमेश्वर का वचन। And thy word is truth. आपका वचन मेरे लिए सच्चाई है। So we have to have a strong grip on the word of God, and the word of God must have a strong grip on us. परमेश्वर का वचन के ऊपर हमारे अच्छा ज्ञान होना चाहिए और परमेश्वर का वचन भी हमारे ऊपर एक अधिकार होना चाहिए। Amen. आमीन। Then gospel, choose gospel. उद्धार का जूता, Right? So ready to share the gospel. और सुसमाचार को सुनाने के लिए तत्पर रहना। Faith is our shield. विश्वास का जो ढाल है, कवच है, Faith in God. परमेश्वर पर विश्वास। Now, the devil will throw the fiery darts, but with the shield, you quench all the fiery darts. विश्वास को जो कवच हमने पकड़ कर हाथ में रखा है, शैतान जब विरोध में अपने बाण चलाएगा उससे विरोध कर सकते हैं। And the word of God और परमेश्वर का वचन is our sword.
वो हमारा तलवार है। But how are you going to use the sword? और इस तलवार को हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसे? हाउ? It, किसी के ऊपर फेंक कर? how are you going to use the word? किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे? We have to speak the word. हमें उस वचन को बोलना है। The Bible, when you read about Jesus, it says, out of his mouth goes a double-edged sword. परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि यीशु के बारे में लिखा है कि उसके मुंह के अंदर से एक द्विधारी तलवार निकलता है। This is a double-edged sword. ये है जो वो द्विधारी तलवार है। Where does it come out? वो कहां से आता है? From your mouth. आपके मुंह से। So you have to speak the word. आपको मुंह से परमेश्वर का वचन बोलना है। So every time you speak the word, और हमेशा जब यीशु के वचन को बोलोगे, you're hitting the devil. ठा ठा करके शैतान को आप मार When you रहे speak हो। the word, जब आप वचन को पढ़ो when you बोलोगे say what the word of God says, और वचन जो बोलता है वो बोलना है, you're nicely to the और devil. वो अच्छी तरीके से शैतान को घात पहुंचाएगा। Amen. आमीन। So speak the word. परमेश्वर के वचन को बोलें। So that's how we counter what the devil, all his traps we fight against. और वो जो घात पहुंचाने वाली चीजें हैं, परीक्षा लेने वाली चीजें हैं जो शैतान लेके आता है, उसके खिलाफ में इसी प्रकार से हम विजय कर ले सकते हैं। Amen. आमीन। Yes. Speak the words. Speak the words and always understand where it's coming from. God's word or Satan's words. So if we have reading this, we are praying this, then we can understand what is the from Satan versus from the Lord. Yes, yes. So our brother was sharing, when we are strong in God's word, we can discern, what's from God, what's from the devil, and we can resist the devil. भाई Just like how जैसे Jesus did. भाई जैसे बता रहे थे कि जब हम परमेश्वर में बहुत ही ज्ञानवर्धित हैं तो हम जान पाएंगे कि क्या शैतान से आता है और क्या परमेश्वर से आता है। Let's go to lesson number 8. 8वें अध्याय में हम जाएंगे। So, in lesson number 8, we must understand that in Christ, we have been set free. हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर में हम छुड़ाए हुए लोग हैं। Now, in the previous lesson, we talked about redemption. पिछले अध्याय में हमने देखा कि छुटकारा। This sounds very similar, but we are addressing different things. ये उसी के तरह सुनाई में पड़ता है लेकिन थोड़ा सा अलग है। We are free from bondage to the law. और जो नियम है उसमें से हम छुटकारा प्राप्त किए हैं। What does that mean? उसका मतलब क्या है? That means we don't live by the Old Testament law. हम जो है पुराने नियम में बताए हुए नियमों के अनुसार अभी का जीवन व्यतीत नहीं करते। We live by the law of love in the New Testament. नए नियम में जो प्रेम का नियम दिया गया है उस प्रेम के नियम के अनुसार हम जीते हैं। We live by the Spirit. हम आत्मा के द्वारा जीवन को व्यतीत करते हैं। That's why the Bible says that if we walk in the Spirit, then there is no law against that. और इसीलिए वचन में कहता है कि अगर हम आत्मा के नियम के अनुसार चलें तो उसके विरोध में कुछ भी नहीं। Right? So, as a believer who is in Christ, जो यीशु मसीह में विश्वास करने वाला विश्वासी है, we are free from the law. और हम नियम से छुड़ाए हुए लोग हैं। Now, somebody will say, does that mean you don't have to follow 10 commandments? आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं उसका मतलब यह है कि हमें 10 कल्पनाओं को मानना नहीं है। Jesus said it like this. यीशु ने ऐसा कहा, If you walk in love, अगर आप प्रेम में चलेंगे, you will fulfill all of the commandments. आप पूरे नियम जो है उसको पूरा कर दिया। If you walk in love. अगर आप प्रेम में चलेंगे, Because if you walk in love, you won't kill your enemy. You won't kill somebody else. अगर आप प्रेम में चलेंगे तो किसी को आप घात नहीं पहुंचाएंगे, You won't steal. आप चोरी नहीं करेंगे। So when you walk in love, automatically you will keep all of the commandments.
उसका मतलब यही है कि अगर आप प्रेम में अपना जीवन को चलेंगे तो कोई भी वो जो सारी कल्पनाएं हैं उसको आप ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रीति से उसको मान रहे हैं। You understand? क्या समझते हैं? Yes? So, in Christ, यीशु में we are not subject to the Old Testament law. हम जो है पुराने नियमों में बोला गया नियमों के अधीन में नहीं है। Now, why do we need to understand this? ये हमें क्यों समझना जरूरी है? Because sometimes people will read one verse in the Old Testament under the law, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग जो है पुराने नियम में जो नियम बोले गए वो पढ़ते हैं and they'll say, see, you must not do this. और कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। Example. उदाहरण, In the Old Testament, पुराने नियम में God said, परमेश्वर ने कहा a woman must not wear what pertains to a man. पुराने नियम में लिखा है कि एक स्त्री जो है आदमी जिस प्रकार से पहनता है वो पहनना नहीं है। Then all ladies wearing jeans, जो स्त्री है जो जीन्स पहनते हैं, so you're all going to hell आप लोग सब लोग जो जीन्स पहनते हैं वो नरक में जाने वाले हैं, because you're wearing something that man wears. क्योंकि जो वो चीज आप पहन रहे हैं जो पुरुष पहनना है। Then in some parts of the world, everything is ulta. और कुछ दुनिया के कुछ क्षेत्रों में देखा जाए तो सब कुछ उल्टा है। Because if you go to Ireland, men are wearing skirts. लेकिन आयरलैंड का नाम का जगह पे अगर जाएंगे तो पुरुष जो है वहां पे स्कर्ट, छोटा वाला स्कर्ट पहनते हैं। Seriously. सच में? Then you don't know what is going on. All you men are going to hell. उसका मतलब है कि आप लोग आदमी लोग हैं जो है सब नरक में जाने वाले हैं। Because there they wear those kinds of clothes. क्योंकि आयरलैंड के देश में वैसा ही उनका रीति है पहनने का। It's full confusion. सब कुछ समझ में के बाहर है। But you know, under the old covenant, लेकिन पुराने नियम के अंदर में there is another law which says a priest must not sweat. कहा गया है कि महायाजक जो है वो उसको जो है पसीना नहीं निकलना है। Now both of us will go to hell. हम दोनों नरक में We are जाएंगे sweating. क्योंकि हम दोनों को पसीना आ No, रहा है। I'm just joking. जैसे एक मजाक तरीके से बताया आपको, But it is there. लेकिन वहां पर है। When we are preaching, if you start sweating, gone. अगर हम प्रचार करेंगे और पसीना निकलना शुरू हो गया, Because Old Testament says priest must not sweat. क्योंकि पुराना नियम कहता है कि महायाजक जो है उसको पसीना नहीं आना है। That was under the old covenant. वो जो है पुराने नियम के अनुसार था। So like that, there are many rules. उस प्रकार से कई नियम पाए गए हैं। So if somebody takes one verse from the Old Testament and they come to you, then you say, hey, you have to keep all of the laws of the Old Testament. और अगर आपके पास कोई आके बोलता है कि एक नियम को निकाल के बोलता है कि ये नियम का पालन तुम्हें करना है, तो ये कहना है कि एक ही नहीं सारा नियम पालन करना जरूरी है। Hey? But in Christ, लेकिन मसीह में we are free from that. उस नियमों से छुड़ाए हुए लोग हैं। Amen? आमीन। We live by the Spirit. हम परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं We live by love. और हम परमेश्वर के प्रेम में जीवन को व्यतीत करते हैं। So we are free from the law. इसीलिए वो न्याय से नहीं तो नियम से छुड़ाए हुए लोग हैं। You understand? क्या आप समझ रहे हैं? So that's the first thing we are free from. और वो है पहला कि हमें नियम से छुटकारा मिला है। 8.2. 8वां अध्याय का दूसरा, This is on page 35 in the Hindi book. 36 हिंदी बुक में, We are free from weak and worthless rituals. हम जो है निर्बल और निकम्मे चीजों से छुड़ाए हुए लोग हैं। So let's read from Galatians chapter 4. We will just read verses 9 to 11. गलातियों 4 का 9 से 11 तक थोड़ा पढ़ेंगे। All right, I'll read in English. But now, after you have known God, or rather are known by God, how is it that you turn again to the weak and beggarly elements to which you desire again to be in bondage? You observe days and months and seasons and years. I'm afraid for you lest I have labored for you in vain. Galatians 4, 9 to 11. गलातियों 4 का, इसके पास है माइक।
Yeah, just read from verse 9 to 11. 9 से 11 तक पढ़ेंगे, माइक ले लें। Galatians 4 9 to 11, please. गलातियों 4 का 9 से 11। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्मल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिसने तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। So, what Paul is telling these believers, और पौलुस जो है अपने विश्वासियों को इस प्रकार से कहता है, you are free from all these worthless rituals and superstitions. और जो अंधविश्वास हैं और जो व्यर्थ प्रथाएं हैं, रीति रिवाजें हैं, उन सब से तुम्हें छुड़ाया गया है। So, he's telling them, you are observing days, months, seasons, years. उसमें कहा, पौलुस कहता है कि तुम ये दिन, ये महीना, ये साल, इस सबको जो है आप देखते हो। Actually, you're free from all this. सच में तो ये तरीकों से, रीति रिवाजों से छुड़ाए हुए लोग हो आप। So, in different cultures, there are different superstitions. और अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार के अंधविश्वास हुए करते हैं। Example, Tuesday you must not go to see something new. Don't start your business on Tuesday, bad day. प्रत्येक तरीके से जो मंगलवार को जो है आप कुछ नया काम शुरू मत करना, किसी से मिलने मत जाना, वो एक खराब दिन है। Or if you're going for some important meeting, only 2 must go or 4 must go, 3 must not go. और अगर कुछ प्रमुख मुख्य काम के लिए अगर जा रहे हैं तो 2 जाएं या 4 जाएं, 3 मत जाना। 3 is bad. 3 जो है खराब है। Or if you're going to go out, one cat, it runs from your left to right, bad, go back home. अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं या कहीं काम में जा रहे हैं, दाएं से बाई तरफ जो है एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो खराब दिन है, घर में वापस चले आओ। Don't go. मत जाओ। What is all this? ये सब चीजें क्या है? Superstition. ये सब अंधविश्वास हैं। Oh, this month is good, that month is not good. ये महीना अच्छा है, वो महीना बुरा है। So Paul is saying, you're observing days and months and seasons and years. और पौलुस कहता है कि तुम ये दिन, महीने, साल और ऋतुएं ये सब देखते हो। You are free from all this. ये सारे चीजों से तुम्हें छुड़ाया गया है। Amen. आमीन। In Christ, यीशु में these things don't affect you, and you must not let these things affect you. ये सारी चीजें जो है तुम्हारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, और ये सारी चीजों के ऊपर तुम्हें भी कुछ ध्यान नहीं देना है। In Christ, every day is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. क्योंकि हर एक दिन जो मसीह में हमारे लिए अच्छा बनाया गया है, और इन दिनों में मैं प्रभु में खुश और आनंदित रहूंगा। Amen. आमीन। In Christ, every day the Lord loads me with his benefits. और हर एक दिन मसीह में प्रभु उसके अनुग्रहों से भरता रहता है। Amen. आमीन। So we don't follow all these worthless rituals and superstitions that maybe we grew up in it, or maybe it's part of our culture. हो सकता है कि आपके बढ़ने के तरीकों में या पारिवारिक रीति से, जातियों में जो है ऐसे विश्वास या चीजें होंगे, तरीके होंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि सारे चीजों से हमें छुड़ाया गया है। Amen. आमीन। One more thing. एक और चीज, 8.3. 8वां अध्याय का 3रा भाग। We are free from man-made rules and ideas. हम जो है मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए नियम और कल्पनाओं से छुड़ाए गए हैं। So, Colossians chapter 2. कोलोसियों उसका 2रा अध्याय। We can read that whole passage, but let me just read verse 18. 18 पढ़ना चाहता हूं। Let no one defraud you by acting as an umpire and declaring you unworthy and disqualifying you from the prize, insisting on self-abasement and worship of angels, taking his stand on visions he claims he has seen, vainly puffed up by his sensuous notions,
and inflated by his unspiritual thoughts and fleshly conceit. Just verse 18. 18 पढ़े। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। So, what Paul is teaching us in Colossians 2 in this passage, कोलोसियों दूसरे अध्याय में इस भाग में पौलुस हमें ये सिखाता है, don't let another person put his ideas and control your life. कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके सोच विचार को आपके अंदर डालकर उसके अनुसार आपके जीवन को ना चलाएं। Example, उदाहरण से some man will come and say, कुछ व्यक्ति आके आपसे कहता है, you must only wear blue color. आप सिर्फ नीला पहनना है। Why? क्यों? Because yesterday one angel came and told me you must wear blue color. क्योंकि कल मुझे एक दूत आके बोला, स्वर्गदूत आके बोला कि आप नीला ही पहनना। So he'll start preaching, और वो प्रचार करेगा, you must only wear blue color. आप सिर्फ नीला पहने। And if you go to his church, और उसके कलीसिया में अगर you जाएंगे have to wear only blue color और सिर्फ नीला कलर का कपड़ा पहन के जाना है, because he's preaching. क्योंकि वो प्रचार करने वाला है। Why? He said some angel came and told him. क्यों? क्योंकि उससे एक स्वर्गदूत ने आके कहा कि नीला रंग का कपड़ा पहनना। Paul is saying, पौलुस कहता है, don't let anybody fool you like that. वो कहता है कि कोई भी ऐसी व्यर्थ बातों में तुम्हें बेवकूफ ना बनाए। You understand? क्या आप समझ रहे हैं? In Christ, you are free from such things. वो पौलुस कहता है कि मसीह में आप लोग जो है इन सारे चीजों से छुड़ाए हुए लोग हो। So don't let somebody in their own mind, they make up something and they say you have to do this, you have to do that. Don't let anybody control you by their own mind, their own thoughts. इसीलिए कहा गया है कि कई लोग आएंगे और बोलेंगे ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन पौलुस कैसा कहता है कि ऐसी व्यर्थ चीजों के द्वारा आप नियंत्रण में, कोई भी आपके ऊपर नियंत्रण ना करें। They may say, I've seen a vision. वो कुछ लोग आके कहेंगे कि मैंने एक दर्शन देखा। They may say, some angel came and spoke to me. तो कुछ लोग कहेंगे कि मुझे स्वर्गदूत ने आके बोला। We live by the word of God. हम जो जीते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं। Amen? आमीन। So you have to ask the question. इसीलिए हमें एक सवाल करना जरूरी है। Anywhere in the Bible, God said you must only wear blue? क्या यीशु मसीह ने कहीं भी कहा है कि वचन में आप नीला रंग का कपड़ा पहनना? Anywhere? कहीं भी? No. नो। So it doesn't matter if you have one angel, 100 angels come and tell you, I'm not going to believe you. कोई बात नहीं, आपके एक स्वर्गदूत आके बोले क्या 100 स्वर्गदूत आके बोले, मैं विश्वास नहीं करूंगा। We will live by the word of God. मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीऊंगा। Amen? आमीन। So we are free from man-made rules and rituals. और हम जो है मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए व्यर्थ नियमों से छुड़ाए हुए लोग हैं। Some rules somebody is making up, कोई व्यक्ति कोई एक नियम बनाता है, we are free from it. उस सारे चीजों से हम छुड़े हुए लोग हैं। But understand this correctly. लेकिन इसे सही रीति से, सही मायने से समझना जरूरी है। Why? क्यों? Because when the bell rings, you have to come. क्योंकि जब बेल बजता है तो आपको वापस आना है। Don't say, pastor said don't follow any rules. ऐसा ना बोले कि पास साहब ने कहा कि कोई भी नियम को पालन नहीं So I'm करना, not going to class. मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। No. In some, we have these rules so that we can all work together and have a good time. ये नियमें जो बनाए गए हैं इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि हम लोग एक साथ मिलकर सीख सकें और काम कर सकें। Amen. Amen. So those rules we follow. वो नियम जो है हम मानते हैं। But I'm saying rules that people use to control our lives in a wrong way. और वो नियमों के बारे में बताया जा रहा है जो गलत रीति से हमारे जीवन को संभालने की कोशिश करेगा। We don't have to, Paul is teaching us, you don't have to be subject to those kinds of things. पौलुस कहता है कि ऐसे चीजों के अधीन में मुझे नहीं होना है। Amen? आमीन। So we must stand firm in our freedom.
हमें जो है हमारे उद्धार में स्थिर खड़े होना है। Don't let anybody put you in bondage. कोई भी आपको बंधन में ना डाल पाए। And yeah, I'll just speak about this. We won't read all the scriptures. Do not abuse your freedom. आपके जो स्वतंत्रता है उसका गलत इस्तेमाल कोई ना करे। That means yes, I have freedom, उसका मतलब है कि मुझे जो है स्वतंत्रता है, but I won't use my freedom to hurt somebody else. लेकिन मेरे को जो स्वतंत्रता है उसको किसी को घात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में नहीं करूंगा। Amen. I have freedom, but I'll use my freedom to respect people. मेरे पास स्वतंत्रता है लेकिन दूसरों को सम्मान देने के लिए मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। I remember a long time ago, मेरे को याद है कुछ सालों पहले I went to one part in South India. एक दक्षिण भारत में मैं एक जगह पर गया था To preach in a conference that was held by a church. एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पर मैं प्रचार करने के लिए गया था। So when I came to the venue, मैं जब उस जगह पर पहुंचा, the main person, he took me to the back of the church. वो जो मुख्य व्यक्ति है जिसने मुझे बुलाया वो मेरे को वो कलीसिया के पीछे तरफ लेके जाता है। And he said, Pastor, sir, you have to take off your belt. और बोलता है कि पास साहब आपका जो बेल्ट पहना है वो निकालना है। So why what? Because the buckle was gold color. क्योंकि आपका बेल्ट का जो बकल है वो सोने का रंग का है। It is not gold. वो अच्छा नहीं है। No, it was not gold. अच्छा, वो सोना नहीं था, It was only gold color. उसमें सिर्फ सोने का रंग था। So you have to take it off. इसीलिए आपको निकालना पड़ेगा। Because here we don't believe in wearing gold. क्योंकि यहाँ पर जो है इस कलीसिया में हम जेवर पहनने के बारे में विश्वास नहीं करते। So please take it off. इसीलिए आप कृपया करके हटा दें। Now, I had a choice to make. मेरे पास एक चांस था जहां पर मैं एक निर्णय ले सकता हूं। I could say no. I will wear my belt. मैं कह सकता था कि मैं नहीं मैं तो अपना बेल्ट पहनूंगा। Or I could say, okay, for their sake, I'll leave my belt outside, go inside, preach, come back and wear the belt. और ये भी कह सकता था कि ठीक है, उनके अच्छाई के लिए मैं अपना बेल्ट निकाल के बाहर रख दूंगा, प्रचार करूंगा, प्रचार करके वापस आऊंगा और पहन लूंगा। Yeah. So for 3 days, 3 दिन के लिए I left my belt outside, मैंने अपने बेल्ट को बाहर रखा, went inside, अंदर चर्च के अंदर गया, preached, प्रचार किया, came outside, बाहर आया, wore the belt, बेल्ट को पहन लिया, came home. अपने घर को चला गया। Doesn't matter. मुझे कुछ उसमें से अलग नहीं लगा। They're happy, I'm happy, God is happy, everybody is happy. वो खुश है, मैं खुश है, परमेश्वर खुश है, उसमें क्या है? Amen. Amen. Doesn't matter. वो कुछ भी मायने नहीं रखता। Those are small things. वो छोटी छोटी चीजें हैं। Amen. Amen. Yeah, I have freedom. I can wear the belt I want, मेरे पास स्वतंत्रता है उस बेल्ट को पहने रखने का, but for their sake, लेकिन उनके लिए, because they believe like that. क्योंकि वो लोगों का विश्वास जो है उस प्रकार से है। It's okay. ठीक है, Just for 3 days. 3 दिन की बात है That's all. Right? बस। So we have freedom, हमारे पास स्वतंत्रता है, but use your freedom wisely. लेकिन आपकी जो स्वतंत्रता है उसको दिमाग से और बुद्धि के अनुसार इस्तेमाल करें। You understand? समझ गए आप लोग? Right? Use it to bless people. आप दूसरों को आशीष देने के लिए आपकी स्वतंत्रता को इस्तेमाल करें। Amen? Amen. Yeah, heard the bell ring. We will follow the rules. बेल बज गया तो रूल नियम का अनुकूल रहेंगे हम, We'll take 15-minute break. 15 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आएंगे। We'll come back.